हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस 9th क्लास के वीडियो में काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सो एज देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर, so the object which possesses kinetic energy is the energy of a moving body. So that energy is known as kinetic energy, and when the object is at rest, it does not possesses kinetic energy. So the examples of the objects having kinetic energy are like running water, moving bullet, rolling stone. Or when you are running, so that means you are also having a kinetic energy. So kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by the object by virtue of its motion. And this kinetic energy depends upon the mass of the object and velocity of the object. Now mathematical expression, how we can give the derivation or the formula for kinetic energy is, let us consider an object which is having a mass m and moving with a velocity u, and it is displaced to a position s. So the force acting on it, and it produces an acceleration of a to increases its velocity. So therefore the work done will be equal to force into displacement. Now if we apply second law of motion, so according to second law of motion, F is equals to m into a. So substituting F by m into a, we will get ma into s. And when we apply third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as, and from here we derive s a displacement, that is v square minus u square upon 2a. So substituting the value of s in this equation, we will get w is equals to ma into v square minus u square upon 2a. So this a cancels out, and what is left? I am writing here m upon 2 or 1 upon 2m v square minus u square. So we are getting this equation. If suppose initially the body is at rest, so if body is at rest, that means u is 0, and now our equation will be 1 upon 2 mv square. So this is the equation for this work done, and when the object is initially at rest, so we are getting w is equals to half mv square. And as we know that work done is equal to energy, and as this energy is due to moving body, so kinetic energy, this is known as kinetic energy, which is half mv square. So for an object at rest, if u is 0, so the kinetic energy of the object at rest will be 0. Now let us study it with the help of an example. So here is an example. An object of mass m is 10 kg, that means m is equals to 10 kg, is moving with a velocity, this is v, 4 meter per second, and find the kinetic energy. So kinetic energy we will write applying this formula. Kinetic energy is half mv square, so this will be half, mass given is 10 and velocity is 4 square. So this will be equal to 1 upon 2 into 10 into 16. 4 4s are 16. So this will give you 8, that means 80 joules of energy. Now let us see one more example. It is saying that calculate the work to be done to increase the velocity of car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg. So mass is given as 1500 kg. Initial velocity given is 25 upon 3 meter per second square. It is given in kilometer per hour. So kilometer per hour can be converted into meter per second. Final velocity 60, that is also converted into meter per second. So work done we know is equal to change in kinetic energy, that is
final kinetic energy minus initial kinetic energy. So on calculation of this kinetic energy means half mv square minus half mu square. So that will give you the total energy or total work done. So in this way we can calculate the work done. Now question answers. First, define kinetic energy. Also write its formula as we have just seen. Kinetic energy is the energy possessed due to its motion. Formula is half mv square. What would be the kinetic energy of a car standing in a garage? So as the car is standing in a garage, so means its kinetic energy will be 0. On what factors does the kinetic energy of the object depend? So the kinetic energy of the object depends upon its mass and velocity. The क्वेश्चन 4 और 5 को अभी हम डिस्कस करते हैं. पहले वर्कशीट को हम हिंदी में भी डिस्कस कर लें. गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा, जब कोई भी वस्तु हम देखते हैं वह अगर चल रही है अपनी गति से तो उसको हम कह रहे हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है, और यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है. उदाहरण के लिए बहता हुआ जल, लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर, बंदूक से निकली गोली, या अगर मान लो आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो आपके अंदर भी गतिज ऊर्जा है. तो गतिज ऊर्जा वस्तु की गति के कारण है और उसमें जो उपस्थित ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कह रहे हैं. इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं. एक है वस्तु का द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और दूसरा है वस्तु का वेग, अगर वेग अधिक है तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी. अब इस गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण हम इसको कैलकुलेट करते हैं. देखते हैं कि किस तरह से हम इसके सूत्र को निकाल सकते हैं. तो मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारे पास है और उस वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से अगर गति कर रही है तो उसके ऊपर बल F लग रहा है, और बल F को कार्य करने के लिए उस पर त्वरण a जो है उसके वेग को s दूरी तक विस्थापित करता है. तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया? F इंटू एस. अगर हम गति का दूसरा नियम लगाएं तो उसमें F बराबर क्या है? m इंटू ए. तो F की जगह अगर हम m और a को रिप्लेस कर दें तो हमारा समीकरण बन गया W बराबर m a इंटू एस. अब अगर हम गति के तीसरे समीकरण को देखें तो गति का तीसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है? v माइनस यू बराबर 2as, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं s की. तो ये s बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a. तो हमारी समीकरण थी w इज इक्वल्स टू एम ए एस. अब यहाँ पर इस s की वैल्यू को अगर हम रखें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी m a और s है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a. अब ऊपर भी a है नीचे भी a है तो ये कैंसिल होगा और इक्वेशन हमारी आ गई 1/2 m. इसको एक बार लिखते हैं. हमारी इक्वेशन हो गई W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का अगर u यानी कि इनिशियली अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, u अगर 0 है तो W बराबर हो गया 1/2 m v स्क्वायर, और किया गया कार्य बराबर किसके है? गतिज ऊर्जा के. तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर. और कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है. तो आइए अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वेग उसका हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड. तो इसकी गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है. हमारा सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर. m हमें 10 दिया हुआ है और v हमें 4 दिया हुआ है, तो v स्क्वायर है 4 इंटू 4. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4. तो ये इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हमारा आएगा बराबर हो जाएगा 80 जूल्स के. तो 80 जूल हमारी गतिज ऊर्जा है. एक और उदाहरण हमें दिया हुआ है. एक कार की गति अगर
30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने के लिए आवश्यक बल को ज्ञात कीजिए और उस कार का जो द्रव्यमान है वो 1500 किलोग्राम है। तो कार का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको कि हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला। उसी तरह से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग हमें दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति आवर, उसको भी हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला। और किया गया कार्य क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई हमारी हाफ mv² माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? हाफ mu²। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 156250 जूल्स। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब एक बार प्रश्नों को हम देखते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखें। तो गतिज ऊर्जा क्या है? जब कोई भी वस्तु गति करती है तो उसमें हम कहते हैं कि वह वस्तु, उसमें कौन सी ऊर्जा है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित हो रही है उसको हम गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। उसका सूत्र है हाफ mv²। एक गैराज में अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वह रुकी हुई है। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा निर्भर करता है द्रव्यमान पर और उसके वेग के ऊपर। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं कि एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर प्रति सेकेंड, एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी दी हुई है? 25 जूल। अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर हम उसके वेग को 2 गुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम मास को कैलकुलेट करते हैं। हम अपना सूत्र लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी 25 है, 25 बराबर हो गया 1/2 इंटू m, और v हमें दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 25 इंटू 2, ये 2 अगर ऊपर गया, और अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारा 2 किलोग्राम। तो यानी कि मास हमारा आया 2 किलोग्राम, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 2 किलोग्राम हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर हमने उसके वेग को 2 गुना कर दिया, यानी कि 5 से अगर हमने उसका वेग 10 कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m हो गया 2 और v² हो गया 10 इंटू 10। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 100 जूल। यानी कि अगर हमने उसके वेग को 2 गुना किया, ठीक है, तो वेग अगर उसका डबल हम कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रही है? 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है। होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। Certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by force. तो अब अगर हम अपने फिफ्थ आंसर को कैलकुलेट करें तो हमारा फिफ्थ आंसर क्या कह रहा है कि मास हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सीधा हम इसको सूत्र लगा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा हाफ mv² माइनस हाफ mu², और इसमें v² माइनस u² हमने हाफ m को कॉमन निकाला है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, जैसा कि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 5 है और फाइनल 2 है। सो इसको सॉल्व करने पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हाफ m हमारा है 20, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी,
सो ये आ जाएगा 4 minus 25, so that will give you minus 21. So answer will be minus 210 joules. So here the negative sign, what does this negative sign shows? क्या बता रहा है ये negative sign कि यहाँ पर जो है वेग जो है वो कम हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है. So nature of the applied force. Hope students this worksheet must be clear to you. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.